एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स जोन। आज के इस वीडियो में मैं पार्ट 3 इलास्टिसिटी के टॉपिक को लेकर आई हूँ। इसमें बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज़ यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो because that video contain the basic elements that will help you to understand the basic concept of elasticity and how to calculate the elasticity coefficient. That will help you to solve the numerical question more easily. तो अगर आप लोगों को पता है how to calculate the coefficient of elasticity and you know the concept of elasticity, then you can stay here and try to solve the questions. But if you do not have idea regarding basic concepts of elasticity and how to calculate the elasticity coefficient, then you can go through the part 1 and part 2 video. So now without getting delayed, let's get started. So here the questions are given 1, 2, 3 and question number 4. So you can take your time, you can pause the video and you can solve it by yourself. This will help you out whether you are going in a correct direction or not. So after solving all the questions, you can come back to the video and then you can check yourself. Okay. So let's get started with the questions. So the first question is the price of samosa increases from rupees 4 to 4.40. The quantity demanded decreased from 50 to 30 units. Calculate the coefficient of price elasticity of demand. This is the first question. And then you have to find out whether demand is perfectly elastic, relatively elastic, unit elastic, relatively inelastic, or perfectly inelastic, right? तो पहले हम लोग इनिशियल प्राइस देखेंगे कि व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ समोसा, दैट वाज ₹4 एंड व्हाट वाज द न्यू प्राइस ऑफ समोसा। ठीक है, तो न्यू प्राइस इज 4.40। तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाता है, राइट? पहले जब ₹4 था प्राइस समोसा का, तो क्वांटिटी डिमांड कितना था? रुपीज सॉरी 50 यूनिट्स था। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्राइस ऑफ समोसा इंक्रीज करता है फ्रॉम ₹4 to 4.40, the demand falls and it goes to 30 units. So we will calculate percentage change in price, then percentage change in demand. So this is how we calculate the percentage change. New price क्या था? 4.40 and old price 4.0 divided by the old price, we will get the percentage change in price, which is equal to 10%, right? Now we will going to calculate the percentage change in quantity demand. So new quantity after changing in prices 30 unit, and what was the old quantity? That was 50 unit. Now we will divide it by old quantity. We will get minus 40% change. Here minus 40% minus sign is important. Why? Because it shows the inverse relationship between demand and price. So don't forget to mention the negative sign because sign is very much important while calculating the elasticity of demand or coefficient of elasticity of demand, right? So using this formula, price elasticity of demand equal to percentage change in demand divided by percentage change in price. Here we have already derived what is the percentage change in price and what is the percentage change in quantity demand.
So using these two values, we have calculated that price elasticity of demand is minus 4.0. Okay. So ये तो कोफिशिएंट निकल गया कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, माइनस 4.0। अब इसका एब्सोल्यूट टर्म अगर हम लोग ले, if we will take the absolute term, so what we will get, एब्सोल्यूट टर्म को अगर निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा वैल्यू 4, पॉजिटिव 4। पॉजिटिव 4 वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन 1 है। पार्ट 1 के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि अगर रिलेटिव इलास्टिसिटी कोई भी प्रोडक्ट का होगा या कोई भी डिमांड जो है रिलेटिव इलास्टिसिटी होगा, तो वो जो कोफिशिएंट वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन 1 रहता है। ठीक है, तो अगर कोफिशिएंट वैल्यू आ जाता है ग्रेटर देन 1, then demand will said to be relatively elastic. So here we have already seen that कि कोफिशिएंट 4 आ रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो डिमांड विल बी रिलेटिवली इलास्टिक, राइट। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कंक्लूडिंग रिमार्क में कि कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स है विद द चेंज इन प्राइस इज हाई। ठीक है, वो ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि 10% चेंज हो रहा है तो वो अपना डिमांड को 40% से डिक्रीज कर रहे हैं। प्राइस अगर 10% से इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड जो है 40% से डिक्रीज हो रहा है। तो प्राइस के तुलना में डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई द डिमांड ऑफ द समोसा इज रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चंस। Assume that quantity demand of rice remained at 100 यूनिट्स। ठीक है, मतलब प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड ऑफ राइस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। वो पहले भी 100 यूनिट्स था और अभी भी 100 यूनिट है। तो प्राइस चेंज ये इधर नेगेटिव भी हो सकता है या नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है लेकिन डिमांड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं इस बेसिस पे कि वो प्रोडक्ट का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है, रिलेटिव इलास्टिक है, यूनिट इलास्टिक है या रिलेटिवली इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि डिमांड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो डिमांड में अगर कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। हाउएवर देयर इज अ चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे व्हाटएवर इट इज। तो हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10% आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव भी मान लेते हैं या फिर नेगेटिव भी मान सकते हैं। ठीक है, प्राइस या तो 10% से इंक्रीज कर रहा है या तो 10% से डिक्रीज कर रहा है। तो 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। ठीक है, 0 बाय समथिंग इज ऑलवेज 0। So here we have seen that 0 by 10% is what? 0, right? Because percentage because percentage change in quantity demand is 0, but there is a change in price. That change in price is not given, so we can assume any value. So here we have assumed that it is 10%, whether it is negative or positive, but demand has not changed. So we will get the elasticity coefficient of 0. Okay, अगर 0 मिलता है कोफिशिएंट वैल्यू तो हम लोग क्या समझेंगे। तो एज पर इकोनॉमिक थ्योरी हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो गुड है वो अनरिलेटेड गुड्स है। ठीक है, कोई सब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। और ये भी कह सकते हैं कि
क्वांटिटी डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। एक तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये तो एज्यूम करेंगे ही करेंगे, बट हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट भी जानेंगे कि ये हो सकता है कि नॉर्मल गुड्स और नेसेसरी गुड्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में 5 मेंबर है, ठीक है, दे आर कंज्यूमिंग राइस एवरी डे, दे लव टू हैव राइस इन देयर लंच टाइम। तो आपका जो घर का जो डिमांड है ना राइस का, वो जनरली चेंज नहीं होता विथ चेंज इन प्राइस। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। चाहे डिमांड, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, आप लोग के घर में जो राइस का जो डिमांड है वो घट नहीं रहा है। क्यों? बिकॉज लंच टाइम में आप लोग जितना क्वांटिटी यूज पहले करते थे, अभी भी आप लोग उतना ही क्वांटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है जिसका डिमांड में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है विथ चेंज इन प्राइस, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड इनइलास्टिक है और वो प्रोडक्ट या तो नेसेसरी गुड्स में फॉल करेगा या तो नॉर्मल गुड्स में फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि क्वेश्चंस के हिसाब से हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि वेदर द प्रोडक्ट इज व्हाट, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और नॉट। ये कोफिशिएंट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। और इंट्यूटिवली वी कैन से दैट कि व्हाट टाइप्स ऑफ गुड इट कैन बी ईदर सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, necessary goods, basic goods, or normal goods. So it depends all upon the questions you have asked. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है इस क्वेश्चंस में कि हम लोग जो है डिमांड फॉर राइस को क्या कह सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे चूंकि हम लोगों का आंसर 0 आ गया है, कोफिशिएंट का वैल्यू 0 आ चुका है, तो हम लोग इस प्रोडक्ट को कह सकते हैं कि इसका डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 0 आता है, तो वो प्रोडक्ट का डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। सिमिलरली, अगर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 आता है, ठीक है, 0.2, 0.3, 4, तो उस प्रोडक्ट का डिमांड हम लोग रिलेटिवली इनइलास्टिक कहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ जाता है, तो हम लोग यह कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का डिमांड यूनिट इलास्टिक है। ठीक है, सिमिलरली अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, तो वो प्रोडक्ट का डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का एब्सोल्यूट वैल्यू इंफिनिटी होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट का डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, सपोज द प्राइस ऑफ बर्गर डिक्रीज्ड फ्रॉम ₹4 to 3। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किसका? तो बर्गर का। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है। एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ पिज्जा डिक्रीज्ड। यहाँ देखिए दो अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट है, इसका मतलब हम लोग क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में बात करने वाले होंगे। ठीक है,
तो बर्गर का जो प्राइस है डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम ₹4 to ₹3 एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ पिज्जा डिक्रीज्ड बाय 50%. ठीक है, so what we have to calculate, we have to calculate the cross price elasticity of demand coefficient between burger and pizza. उसके बाद हम लोगों को ये बताना है कि आर बर्गर्स पिज्जा कॉम्प्लीमेंट, सब्स्टिट्यूट नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स. पहले तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोफिशिएंट निकालेंगे. किसके और किसके बीच में, बर्गर एंड पिज्जा के बीच में. एक्सक्यूज मी. उसके बाद then we will going to find out on the basis of coefficient value whether that is a complement goods, substitutes, normal goods or inferior goods. ठीक है, so let's get started. प्राइस ऑफ बर्गर क्या हुआ है, चेंज हुआ है फ्रॉम ₹4 to 3. क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस क्या आया है, 50% चेंजेस आया है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे. कैसे निकालते हैं हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं, फिर से और एक बार देख लेते हैं. ठीक है, न्यू प्राइस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 into 100. So we will get 25%. वो नेगेटिव में. ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइस डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज को हम लोग कैसे शो करते हैं, नेगेटिव साइन से शो करते हैं. तो हियर द परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 25% and percentage change in quantity demand of pizza is already given, that is minus 50%. So using this formula, percentage change in quantity of demand of good Y, यहाँ good Y के जगह में क्या हो जाएगा, बर्गर. percentage change of quantity demand of pizza, okay, गुड वाइब. क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है, किसका चेंज हो रहा है, तो पिज्जा का चेंज हो रहा है, राइट. सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड एक्स, तो गुड एक्स की जगह हम लोग यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ हम लोग रखेंगे बर्गर. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बर्गर इज -25% and percentage change in quantity demand of good is -50%. Then we will calculate and we get the value +2. It means that the good is substitute. Why it is substitute? आप लोग देखते हैं कि जैसे टी का प्राइस मान लीजिए बढ़ जाता है, ठीक है, तो डिमांड कॉफी का बढ़ जाता है, डिमांड ऑफ कॉफी इंक्रीजेस. ठीक है, तो ये दोनों गुड्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस टी एंड कॉफी आर सब्स्टिट्यूट. ऑलराइट. सिमिलरली अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात करें तो पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, देन डिमांड ऑफ कार विल गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीजल इंजन. ठीक है, फॉर पेट्रोल इंजन थ्रू विच कार इज मूविंग. तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में यहाँ पे हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे. तो यहाँ पे पेट्रोल एंड कार विल बी टेकन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज एक प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ता है तो दूसरे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो फॉल कर जाता है. दैट्स व्हाई दे विल बी सीन एज कॉम्प्लीमेंट. और जब इसका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाता है कॉम्प्लीमेंट के केस में. अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो हम लोग कहते हैं कि वो गुड्स जो है वो सब्स्टिट्यूट है. अगर नेगेटिव है
तो वो जो दोनों गुड का रिलेशन है वो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। So it has been given and written here for your benefits. You can go through it. और यहाँ पे क्वेश्चंस में नॉर्मल गुड्स और यू नो व्हाट इंफीरियर गुड्स की बातें की गई है। नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के बारे में हम लोग तभी पढ़ते हैं या कोई भी गुड्स को कैटेगराइज नॉर्मल और इंफीरियर गुड के बेसिस में करते हैं जब हम लोग निकालते हैं उस गुड्स का डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द इनकम, ठीक है। तो इनकम से अगर रिलेशन बैठता है कोई भी गुड्स के डिमांड का, तब हम लोग नॉर्मल और इंफीरियर टर्म्स में कैटेगराइज करेंगे, अदरवाइज हम लोग कॉम्प्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट में जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वी आर डिटरमाइनिंग द चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ पिज्जा with respect to change in price of burger, तो यहाँ पे प्राइस की बात की गई है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वी कैन कैटेगराइज द गुड इनटू सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट। बट यहीं अगर चेंज इन इनकम की बात की जाती, तब हम लोग गुड्स को इंफीरियर और नॉर्मल गुड्स में कैटेगराइज करते। अगेन आई एम टेलिंग दैट आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो में जाइएगा, तो किस तरह से पॉजिटिव साइन आता है तो वो उसको कॉम्प्लीमेंट में, पॉजिटिव में सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव में कॉम्प्लीमेंट, ये सारा डिटेल में दिया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू इट। इनफैक्ट जब हम लोग निकालते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और कोफिशिएंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, तो दैट गुड विल फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ इंफीरियर गुड्स। इन अदर वर्ड, if the income elasticity of demand will be positive, then that good will be fall into category of normal goods, right? Now the question number 4, I think this is the last question, but very important questions. You will get to know lots of concepts here. So try to be here and try to understand the questions and try to solve the questions as well. Assume the price of apple increases from rupees 100 to 120 and the quantity demanded falls from 10 tons to 5 tons. So part A में पूछा गया है, you have to calculate the revenue and using total revenue test you have to determine what is the means whether demand is relative elastic or relatively inelastic. Okay. तो अगेन टोटल रिवेन्यू टेस्ट के बारे में मैं पार्ट 1 में बताई हूँ. I can't explain it here because the video will be too lengthy. So you can go through it and you can come back and solve the question. पार्ट बी में क्या है? कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोफिशिएंट. पहले तो टोटल रिवेन्यू टेस्ट फाइंड आउट करना है and then we have to categorize the demand on the basis how it is and what it is, whether it is relatively elastic or relatively inelastic. सेकेंड में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कोफिशिएंट, जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 1 2 3 में निकाला है डिमांड कोफिशिएंट, उसी तरह से निकालेंगे. एंड देन वी विल गोइंग टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई व्हेन द प्राइस चेंजेस, ओके, or the supply changes with respect to the price change. In D part, we will going to see why total revenue test cannot be used to determine elasticity of supply. ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि टोटल रिवेन्यू टेस्ट जो होता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए ही यूज होता है. इट कैन नॉट बी यूज फॉर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो you have to keep in mind that total revenue test is always applicable to elasticity of demand but not elasticity of supply. क्यों ऐसा है वो हम लोग पार्ट डी में देख लेंगे. एंड देन
ई पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्राइस ऑफ एप्पल इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ वेनिला आइसक्रीम जो है डिक्रीज कर जा रहा है। तो what we can imply whether the good or these two products are substitute or complement। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्राइस इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम ₹100 to 120। ठीक है, और क्वांटिटी चेंज हो रहा है 10 to 5। तो इसको टेबल फॉर्मेट में अगर हम लोग प्लॉट करें तो ज्यादा इजी होगा। पहले प्राइस था 100, उसके बाद चेंज होके 120 होता है। क्वांटिटी डिमांड था 10 at price ₹100 and the quantity demand changes from 10 to 5 when the price changes from 100 to 120। टोटल रेवेन्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? P into Q equal to total revenue। So 10 into 100 is 1000 and 120 into 5 is 600। So we got the total revenue। तो टोटल रेवेन्यू टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि प्राइस के इंक्रीज करने से टोटल रेवेन्यू में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्राइस अगर इंक्रीज करता है और टोटल रेवेन्यू जो है इंक्रीज करेगा तो demand will be inelastic। On the other hand, if price will increase and total revenue will decrease, then demand will be elastic। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्राइस जो है इंक्रीज कर रहा है। ओके, वी कैन से दैट कि यहाँ पे प्राइस क्या है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन टोटल रिवेन्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, एज पर टोटल रिवेन्यू टेस्ट that demand of that product is relatively elastic। ठीक है, relatively elastic। explanation is given here, you can go through it। now coming to the B part, we have to calculate the elasticity of demand or coefficient of elasticity of demand। so we all know that the formula of the elasticity of demand is percentage change in quantity demand divided by percentage change in price। What is the percentage change in quantity? तो percentage change -50% आ रहा है। and what is the percentage change in price? It is +20% क्योंकि price increase किया है और price increase कर रहा है तो quantity demand क्या हो रहा है, fall down हो रहा है, decrease कर रहा है। That's why it is in negative sign। Okay, so the coefficient value is -2.05। Hence we can say that demand is relatively elastic। ठीक है, part C। now we are going to calculate the price elasticity of supply। इसका जो फॉर्मूला है ना कैलकुलेट करने का, कोफिशिएंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी एकदम सिमिलर है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस करेंगे तो वी विल गेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, so using the same formula we will calculate the elasticity of supply and we will get that elasticity of supply is 7.5। 7.5 है, इसका मतलब क्या है कि elasticity of supply is highly elastic। ठीक है, now the very important questions that has been asked in part D कि total revenue test जो है वो applicable for demand only but not applicable for supply। तो इसका एक रीजन ये है कि प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर के लिए हमेशा मतलब विन विन सिचुएशन होता है और उनका टोटल रिवेन्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इट इज नॉट
इट हैज नॉट बीन सीन दैट कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज करने से टोटल रिवेन्यू में उनका कोई मतलब चेंजेस आता है। चेंजेस इन द सेंस कि उनका प्राइस डिक्रीज करेगा तो टोटल रिवेन्यू हमेशा फॉल करेगा, और प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो टोटल रिवेन्यू हमेशा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात ये है, कोई भी सप्लायर अपने प्रोडक्ट को हमेशा हाई प्राइस में बेचना चाहेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हाई प्राइसेस रहेगा उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा वो इनकम जनरेट करेंगे, और उतना ही ज्यादा टोटल रिवेन्यू उनके पास जनरेट होगा। लेकिन डिमांड के केस में सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि प्राइस के इंक्रीज करने से कभी कभी क्या होता है कि टोटल रिवेन्यू डिक्रीज भी करता है और टोटल रिवेन्यू इंक्रीज भी करता है। तो डिपेंड करता है कि वेदर द कमोडिटी इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। लेकिन सप्लाई के केस में ये पता ही नहीं चलता है कि सप्लाई इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। सप्लाई हमेशा इंक्रीज करेगा अगर प्राइस इंक्रीज करेगा। तो हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं कि वेदर द प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई और इनइलास्टिक सप्लाई, क्योंकि चेंज जो है हमेशा कांस्टेंट है, कोई भी बदलाव उसमें नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए वही प्राइस इंक्रीज किया जा रहा है और सप्लाई अगर मान लीजिए फॉल करता या तो इंक्रीज करता, तब ये टेस्ट एप्लीकेबल होता फॉर द केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लेकिन इस केस में नहीं है ऐसा। ठीक है, दूसरी और बात सोचने लायक है कि सप्लाई जो है, it is not only dependent on price but it dependent on production cost, technology, capacity, economies of scale, and lots of things you can think about, marketing strategy, marketing, advertisement, etc. तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा, प्राइस भी ज्यादा रखेंगे, और प्राइस ज्यादा रखेंगे तो रेवेन्यू ज्यादा होगा। सो देयर इज नो total revenue test that will going to determine whether the product is supply elastic or supply inelastic, right? I think this is clear to you now. Now coming to the party, if the price of apple increases, ठीक है, quantity demand of vanilla ice cream decreases, ठीक है, so they both are moving in what, opposite direction। opposite direction में movement कर रहा है, that means क्या है, the good is complement। यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएगा। टी और कॉफी का मैं एग्जांपल दी थी आपको कि अगर टी का प्राइस इंक्रीज कर जाता है तो कॉफी का डिमांड जो है इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो these two goods are what, substitute। सिमिलरली मान लीजिए कॉफी एंड शुगर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट। अगर शुगर का प्राइस बढ़ रहा है, if the price of sugar is increasing and demand of coffee is decreasing, then these two are moving in what, प्राइस के रिस्पेक्ट में डिमांड क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम लोग ऐसे गुड्स को कॉम्प्लीमेंट गुड्स कहते हैं। ठीक है, सो हियर एप्पल एंड वेनिला आइसक्रीम आर कॉम्प्लीमेंट गुड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल values नहीं दिए गए हैं, that's why we are not going to derive the cross price elasticity here। Hence with intuition we are going to determine whether the goods are complements or substitutes। So we can say that price and quantity demand are moving in opposite direction,
दैट्स व्हाई द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स। यही अगर मान लीजिए एप्पल का प्राइस इंक्रीज करता और क्वांटिटी डिमांड ऑफ वेनिला आइसक्रीम भी इंक्रीज कर जाता, तब हम लोग कह सकते थे कि गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट। सो थैंक यू एवरीवन। आज का इस पार्ट में हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए थे वो हम लोग सॉल्व किए, और ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ही सिंपल टर्म्स में थे। अगर आपको डेरिवेटिव का आइडिया भी नहीं है फिर भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हाउ टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी, ठीक है, और इलास्टिक कोफिशिएंट। तो नेक्स्ट पार्ट 4 वीडियो जो आएगा उस वीडियो में मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है इलास्टिसिटी के, वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी। और बहुत सारे ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में या फिर यूजीसी नेट एग्जाम वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो we will take up the questions that how to calculate price elasticity from demand equation and supply equation using derivative. So next part में we will going to cover that. Okay, thank you so much.